Prime Minister Narendra Modi shares his thoughts in the 75th episode of Mann Ki Baat program, expresses gratitude to listeners for making this program a success, urges people to take the story of freedom struggle to the people through Amrit Mahotsav, also says birth anniversary of Dr. Baba Saheb Ambedkar this time has become even more special. Prime Minister Narendra Modi stresses on the importance of adoption of modern agricultural technology besides traditional methods, cites the example of beekeeping, says it is emerging out to be foundation of a sweet revolution. Prime Minister congratulates Mithali Raj for her contribution towards women cricket, says the story of her perseverance and success not only inspiring women cricketers but also male cricketers. Country's daughters are making a distinct mark everywhere. Extends greetings for upcoming festivals. Prime Minister says India is running the world's largest vaccination drive, says tremendous amount of enthusiasm witnessed among elders towards this drive. Also appeals to take vaccines, urges people to follow the mantra of Dawai Bhi, Kadhai Bhi. India crosses a landmark milestone of over 6 crore vaccine doses administered. More than 24 crore COVID tests conducted in the country. Centre advises high burden states and union territories to take stringent measures for containment of the surge. Campaigning in full swing for assembly polls. Senior BJP leader Rajnath Singh addresses press conference in Thiruvananthapuram in Kerala. Congress leader Rahul Gandhi addresses a public rally in Chennai. More than 110 protesters killed in Myanmar crackdown by security forces. International community condemns the lethal crackdown on the protesters. England win the toss and elect to field against India in the third and the final ODI at Pune. Natarajan replaces Kuldeep and the series is levelled at 1 each after the visitors blaze their way to an emphatic win in the second game. Hello, you're watching DD India this Sunday afternoon and I'm Preeti presenting the bulletin. Our top story first. Prime Minister highlighted in this episode of his monthly radio show that it coincides with the month that marks the commencement of Amrit Mahotsav, that is the 75 years of independence. He shared one of the many messages he received on the Namo app. We get you more details in this report. Prime Minister Modi on Sunday addressed the nation in monthly radio program Mann Ki Baat. It was the 75th Mann Ki Baat program and the Prime Minister called it a pleasant coincidence to express his 75th radio program on the very month that marks the commencement of the Amrit Mahotsav of the 75 years of independence. अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं। अलग-अलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीरें, जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं। Prime Minister Modi shared one of the many messages he received on Namo app, where a resident of Jharkhand named Naveen shared pictures of him watching programs on Amrit Mahotsav. Naveen in his message also said that he has decided to visit at least 10 places connected with the freedom struggle, starting with the birthplace of Bhagwan Birsa Munda. नवीन ने लिखा है कि झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां वो देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाएंगे। भाई नवीन, आपकी इस सोच के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। Through his radio show, Prime Minister Modi asked people to become a means to connect with the countrymen by bringing to the fore the struggle saga of a freedom fighter, the history of a place or any cultural story from the country. और फिर ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देगी, देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी,
कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी। Prime Minister Modi said in the struggle for independence, freedom fighters had undergone a number of hardships. The Prime Minister said the freedom fighters considered sacrifice for the sake of the country as their duty. हमारे सेनानियों ने कितने ही कष्ट इसलिए सहे क्योंकि वो देश के लिए त्याग और बलिदान को अपना कर्तव्य समझते थे। उनके त्याग और बलिदान की अमर गाथाएं अब हमें सतत कर्तव्य पथ के लिए प्रेरित करें। और जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हकर्मणः, उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें, उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं। और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो, देश की भलाई के हो, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो। और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो। मुझे विश्वास है गीता को जीने का ये सुवर्ण अवसर हम लोगों के पास है। Prime Minister Modi in his 75th episode of the Mann Ki Baat also expressed his heartfelt thanks to all the listeners for making the radio program a success, enriching it and staying connected. Bureau Report, DD India. Prime Minister Narendra Modi also emphasized on the need of modernization in the field of agriculture. He mentioned about adopting new alternatives, new innovations along with traditional farming as a means for increasing the income of farmers and creating new opportunities for employment in the agriculture sector. Let's listen in. In the 75th edition of Mann Ki Baat program, Prime Minister Narendra Modi emphasized on increasing the income of farmers with using modern technologies. Prime Minister mentioned how bee farming is emerging as a foundation of a honey revolution. भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। Prime Minister Modi gave several examples from across the country, ranging from Gurdam village in West Bengal's Darjeeling to the natural organic honey of the Sundarbans of West Bengal, which is in great demand in our country and around the world. जैसे कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक गांव है गुरदुम। पहाड़ों की इतनी ऊंचाई, भौगोलिक दिक्कतें, लेकिन यहाँ के लोगों ने हनी बी फार्मिंग का काम शुरू किया और आज इस जगह पर बने शहद की, मधु की अच्छी मांग हो रही है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के ही सुंदरबन इलाकों का प्राकृतिक ऑर्गेनिक हनी तो देश दुनिया में पसंद किया जाता है। Reminiscing his personal experience in Gujarat, PM Modi shared how he had mentioned Banaskantha as being a major center for honey production and how farmers can write a new chapter of a sweet revolution. गुजरात के बनासकांठा में वर्ष 2016 में एक आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में मैंने लोगों से कहा कि यहाँ इतनी संभावनाएं हैं, क्यों न बनासकांठा और हमारे यहाँ के किसान स्वीट रिवॉल्यूशन का नया अध्याय लिखे। आपको जानकर खुशी होगी, इतने कम समय में बनासकांठा
शहद उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया है। आज बनासकांठा के किसान हनी से लाखों रुपये सालाना कमा रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हरियाणा के यमुनानगर का भी है। यमुनानगर में किसान बी फार्मिंग करके सालाना कई 100 टन शहद पैदा कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। किसानों की इस मेहनत का परिणाम है कि देश में शहद का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और सालाना करीब 1.25 लाख टन पहुंचा है। इसमें से बड़ी मात्रा में शहद विदेशों में निर्यात भी हो रहा है। Further, Prime Minister Modi said that not just honey but bee wax can also become a big source of income for farmers. PM highlighted how honeybee farming is contributing to the Atmanirbhar Bharat campaign and that more and more farmers should join bee farming. साथियों, हनी बी फार्मिंग में केवल शहद से ही आय नहीं होती, बल्कि बी वैक्स भी आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हर जगह बी वैक्स की डिमांड है। हमारा देश फिलहाल बी वैक्स का आयात करता है, लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिति तेजी से बदल रहे हैं। यानी एक तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद कर रहे हैं। आज तो पूरी दुनिया आयुर्वेद और नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स की ओर देख रही है। ऐसे में हनी की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं देश के ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ बी फार्मिंग से भी जुड़ें। ये किसानों की आय भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा। Prime Minister Narendra Modi in this edition of Mann Ki Baat emphasized on ways for farmers to increase their income and lauded many for their innovative efforts. Bureau Report, DD India. Also, Prime Minister Narendra Modi has appealed to everyone to take the COVID-19 vaccine. Sharing his thoughts in the Mann Ki Baat program at All India Radio today, Prime Minister Modi said that it is a matter of honor for everyone that India is running the world's largest vaccination program. He said that several people above 100 years of age have taken the jab and the enthusiasm is visible in the elderly of the households regarding the vaccine. He said that amidst all these, everyone should remember the mantra to fight corona, दवाई भी कढ़ाई भी। With the coronavirus cases surging once again across the country, Prime Minister Narendra Modi lauded the efforts of corona warriors in containing the virus. He said that our small acts of praise gives a lot of contentment and encourage these frontline workers. पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था। देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था, लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी। उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे। With its robust vaccination program, India continues to inoculate its population on a large scale. PM Modi expressed his happiness as several people above 100 years of age have taken the jab, which signifies the enthusiasm of vaccines among the elderly. आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर के पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूं। साथियों, सही भी है। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां
राम दुलैया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। Prime Minister once again reiterated his call of Dawai Bhi, Kadai Bhi and urged everyone to stay cautious and safe. Bureau Report, DD India. Prime Minister Narendra Modi today also praised the captain of Indian women's team, Mithali Raj, for scoring 100,000 runs in international cricket. In his 75th Mann Ki Baat radio program, the Prime Minister said that the story of Mithali Raj's perseverance and success is an inspiration not just for women cricketers but also for the male cricketers. भारत की क्रिकेटर मिताली राज जी का नया रिकॉर्ड। मिताली जी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। उनकी इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई। वनडे इंटरनेशनल्स में 7,000 रन बनाने वाली भी वो अकेली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है। महिला क्रिकेट के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत शानदार है। 2 दशकों से ज्यादा के कैरियर में मिताली राज जी ने हजारों लाखों को प्रेरित किया है। उनके कठोर परिश्रम और सफलता की कहानी न सिर्फ महिला क्रिकेटरों बल्कि पुरुष क्रिकेटरों के लिए भी एक प्रेरणा है। Mithali Raj took to Twitter to thank Prime Minister Narendra Modi for acknowledging her achievements in his Mann Ki Baat episode today. She said that it was a very big honor for her. And Prime Minister Narendra Modi during his 75th Mann Ki Baat program also greeted the nation on the occasion of Holi, Ugadi, Gudi Parva and Navratri. रंगों के साथ होली मना रहे होते हैं, उसी समय बसंत भी हमारे चारों ओर नए रंग बिखेर रहा होता है। इसी समय फूलों का खिलना शुरू होता है और प्रकृति जीवंत हो उठती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में जल्द ही नया साल भी मनाया जाएगा, चाहे उगादी हो या पुथंडू, गुड़ी पड़वा हो या बिहू, नवरे हो या पोइला या फिर बोईशाख हो या बैसाखी। पूरा देश उमंग, उत्साह और नई उम्मीदों के रंग में सराबोर दिखेगा। इसी समय केरल भी खूबसूरत त्योहार विशु मनाता है। इसके बाद जल्द ही चैत्र नवरात्रि का पावन अवसर भी आ जाएगा। चैत्र महीने के 9वें दिन हमारे यहाँ रामनवमी का पर्व होता है। इसे भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ ही न्याय और पराक्रम के एक नए युग की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। इस दौरान चारों ओर धूमधाम के साथ ही भक्ति भाव से भरा माहौल होता है, जो लोगों को और करीब लाता है, उन्हें परिवार और समाज से जोड़ता है, आपसी संबंधों को मजबूत करता है। इन त्योहारों के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। India has registered a significant achievement in its fight against COVID-19. The country's total vaccination coverage has surpassed 6 crore today. 6 crore 2,69,782 vaccine doses have been administered in 8 states, and that accounts for 60% of the cumulative vaccine doses given so far. Each of the 8 states has administered more than 30 lakh doses. As on day 71 of the vaccination drive, 21,54,170 vaccine doses were given. 7 states of Maharashtra, Chhattisgarh, Karnataka, Punjab, Gujarat, Madhya Pradesh and Tamil Nadu have reported high number of COVID daily new cases. Now, these states account for 81.46% of the daily new cases registered in the last 24 hours. The Union Health Secretary chaired a high-level review meeting yesterday with additional chief secretaries, principal secretaries and secretaries of 12 states and municipal commissioners and district collectors of 46 districts.
that are the most affected by rising cases and rising mortality because of COVID-19 and suggested a five-fold strategy to curb the tide of the new COVID cases. Now, these states are Maharashtra, Gujarat, Haryana, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, West Bengal, Delhi, Jammu and Kashmir, Karnataka, Punjab and Bihar. In another significant development, the total tests conducted across India have exceeded 24 crore, while the cumulative positivity rate continues to remain below 5%. Union Minister Rajnath Singh today said that if BJP is voted to power in Kerala, it will end rampant corruption and violence in the state. Addressing a press conference in Thiruvananthapuram, Rajnath Singh said that people of Kerala need a new political alternative that can be given by BJP. All right, we'll get that soundbite in a while from now. At present, we'll get you the press conference which is being addressed by Union Home Minister Amit Shah in the national capital. We'll take you live there. मतदान समाप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ओर से, दोनों राज्यों की प्रथम चरण में मतदान जो हुआ है, इसलिए दोनों राज्यों की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ में भारी मात्रा में मतदान कर उन्होंने इस चुनाव में हमारे लिए शुभ संकेत दिए हैं। पश्चिम बंगाल में 84% से ज्यादा मतदान और आसाम में 79% से ज्यादा मतदान, ये मतदाताओं का भारी उत्साह बताता है। ये दोनों राज्य, आसाम कुछ सालों पहले और बंगाल इस चुनाव के पहले हर चुनाव में चुनावी हिंसा के लिए जाने माने वाले राज्य हैं। दोनों जगह मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। एक भी व्यक्ति की जान कहीं पर नहीं गई है। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र में आने वाले दिनों के लिए दोनों राज्यों के लिए शुभ संकेत है। मित्रों, दोनों राज्यों के कार्यकर्ता, हमारे जो फील्ड में बूथ तक के पार्टी के प्रचार करने वाले प्रमुख लोग हैं और जिला स्तर और प्रदेश स्तर के हमारे नेतृत्व गण से चर्चा करने के बाद मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। जहां तक आसाम का सवाल है, 47 में से 37 सीटों से ज्यादा, 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से हमें मिले हैं और मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों ने एक सकारात्मक मतदान किया है। असम के अंदर आतंकवाद मुक्त असम, आंदोलन मुक्त असम, विकास के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, रोजगारी के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, इसके पक्ष में साफ मैंडेट दिखाई पड़ता है। और असम के अंदर इसके साथ साथ बाढ़ मुक्त असम के भारतीय जनता पार्टी के वादे को भी
बहुत बड़ा समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आसाम के अंदर जो विकास हुआ है, वहां की हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की जोड़ी ने जिस प्रकार से अभूतपूर्व विकास आसाम के अंदर किया है, इसको बड़ा जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। डबल इंजन सरकार का कंसेप्ट आसाम की जनता को भारतीय जनता पार्टी के आचरण से समझ में आया है और ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 से ज्यादा ब्रिज बनना, इसकी शुरुआत होना, 20,000 किलोमीटर से बड़ा रोडों का जाला बुन लेना, काजीरंगा के जंगलों की जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराना, श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव के सत्र की जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराना, ढेर सारे विकास के काम जिसका एक सकारात्मक झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्पष्ट नजर आता है और हमारे गठबंधन की 37 सीटें से कम नहीं होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। दूसरी ओर बंगाल के अंदर जिस प्रकार का तुष्टीकरण का माहौल था, जिस प्रकार से बेरोक-टोक घुसपैठियों का घुसना चालू रहा, जिस प्रकार से पूरा बंगाल जन कल्याण के पैसे सरकारी मशीनरी और सत्ताधारी पार्टी मिलकर हड़प करते रहे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, जिस प्रकार से अम्फान का रिलीफ रिहेबिलिटेशन हो या कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, जिस प्रकार से अव्यवस्था और अफरा तफरी देखी गई और औद्योगिक विकास, महिला सुरक्षा, ये सब में घोर निराशा और हताशा बंगाल की जनता को प्राप्त हुई है। 27 साल के कम्युनिस्टों के शासन के बाद उनको एक आशा थी कि दीदी एक नई शुरुआत लेकर आएगी, मगर दल का चिन्ह बदल गया, दल का नाम बदल गया, बंगाल वही का वही रहा और गिरावट आई। और उस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो सोनार बांग्ला का एक विजन दिया है, हमने बंगाल की जनता के मन में एक आशा की जोत जगाने में हम सफल रहे हैं कि अन्य राज्यों की तरह बंगाल भी सुजलाम सुफलाम हो सकता है, बंगाल भी विकसित हो सकता है, बंगाल के अंदर भी शांति हो सकती है, बंगाल के अंदर भी तुष्टीकरण से बगैर संविधान की योजना के तहत कोई सरकार चल सकती है, बंगाल के अंदर भी धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों के लोगों को मिल सकती है। ये सारे मुद्दों को बंगाल की जनता ने मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम और अमिट आशा के साथ स्वीकारा है। जो कार्यकर्ता चुनाव के फील्ड में थे, सुबह सुबह थोड़ी दहशत थी कि हर बार की तरह गुंडे चुनाव को प्रभावित करेंगे, प्रदूषित करेंगे, परंतु मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव कराने में चुनाव आयोग को सफलता मिली है। आप सभी लोग भी जानते हैं, विगत कई सालों से बंगाल के अंदर चुनाव में हिंसा आम हो गई थी। आप लोगों ने उसको कवर करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि आप समझते थे वो तो होना ही है। ये पहला चुनाव सालों के बाद हो रहा है जहां एक भी व्यक्ति के मरे बगैर, एक भी बम फटे बगैर, एक भी गोली चले बगैर, एक भी बूथ में रीपोलिंग हुए बगैर बंगाल का चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं ये बहुत शुभ संकेत है। बंगाल की महिलाओं का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा
भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। आसाम में भी अभी जो सीटें हैं, इससे ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूछ सकते हैं आप। Union Home Minister Amit Shah, he was addressing a press conference in the national capital, and he talked of the elections in Assam and West Bengal. He referred to the polling in both the states, and he said that on account of development in Assam, there is confidence that BJP will come to power. And he also talked of how in West Bengal also polls were conducted without any untoward incident being reported, and he also expressed confidence about winning power in the state of West Bengal. That's it in this edition of the News Sisa. Thanks for watching. Bye-bye.